Very fine, Damini. Thank you. Hello, everyone. Very good afternoon. So it has been a hot week. Oh, very well, guys. I think most of participants are already here. And Damini, is it recording? Yes, sir. I start the session in the recording. Okay, thank you. Very fine. So, well, guys, let's start off. I hope my screen is visible. I'm clearly audible. Just please give me a yes in the chat box. Wow, very fine. Thank you. So, just can you guys remind me where were we in last session? We were running this 1 hour file, and we were looking at different data types of R. Then we moved on to some data structures in R, and we were talking about vector. Can somebody tell me up to which line where do you must have received this file now? Is it so, guys? Can somebody confirm? Is my voice echoing? Yes, sir. Just give me a moment. Just give me a moment. I will drop and join back. Guys, hello again. Can you please confirm if my voice is clear now? It should not be echoing. It should not be cracking. Manish, then it seems it is problem at your end. Manish, you can please drop for once and join back because others are confirming that it is clear now. Very well, guys. So we were talking about vector. Vector is nothing but linear set of values, and just like a column in a data set, we can understand vector by that analogy. We talked about this. If a data set is containing age column, please confirm ये सब बात हुआ था. Please tell me. I will not waste time over this again. If it was not covered, please confirm that also. We talked about, yes, if they are okay, I'll run it together. I think we had talked up to where? Up to indexing of vector. Right? We were talking about indexing of vectors. Okay, very well, Abhilasha. Thank you. Thank you. Now I recall. Fantastic. बट उसके आगे आप लोगों ने रन करके देखा था क्या? Did you people run it by yourself? मैंने शायद एक कोड भी भेजा था छोटा सा, बहुत छोटा सा. वो रन करके देख लिया था आप लोगों ने. You got it right? कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, वो जस्ट रन करके देखना था आपको. एंड इट वाज वेरी इंट्यूटिव कोड. समझ आ गया होगा उसे करके कि क्या हो रहा है.
Figure, I will keep doing this. Actually, the intent was to do this in the week which has just gone by. I was about to send you some further codes, but I could not. Last week was very hectic for me. My grandmother was ill for several days, and day before yesterday, finally she passed away. So, however, I will in the coming week I will keep sending you some these basic things. I will avoid covering in class time and again, so that so that we can save time and we can do something constructive in these sessions. Talking of this इंडेक्सिंग, हमने देखा था कि एक सिंगल लोकेशन अगर मेरे को इंडेक्स करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट देखते ही समझ आ जाना चाहिए लोकेशन का बात हो रहा है, इंडेक्सिंग की बात शुरू हो गई है. Say this was my vector, it has 4 values and I want to access its third location, the third index. तो क्या वैल्यू आनी चाहिए थी इसकी? Last time we established that in our indexing begins at is somebody? Correct. 14 आना चाहिए because indexing begins at 1. Then we saw if multiple मेरे को चाहिए होंगे, if I want to access multiple elements in a sequence, I can type sequence in this way. So 2:4 essentially means 2 से लेकर के 4 तक ये सारी locations चाहिए. So it will essentially give me second, third and fourth location which are 10. Very fine, no surprises so far. Then we talked about multiple locations अगर मेरे को access करनी है, then I cannot simply give 1,4. It means something else. Perhaps इसके बारे में बात किया था हमने. If I need to access multiple elements from one single vector, from one linear entity, I have to mention vector of locations. So combined, I have combined 2 locations and now I am accessing and it gives me first and fourth locations. Very fine. अगर ये आप लोगों ने रन किया था समझ आया होगा, समझ नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, रन नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, देखते हैं. So एक question था. Yes, it is Watson. Yes, Watson. Sir, ये आपने square brackets use करें. Watson could not hear you properly. Sir, ये जो my vector आपने दिया था, my vector define करा C 5 8 14 10. तो उसके बाद जब हम थर्ड नंबर वाला जो चूज कर रहे हैं तो उसका हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिए और फिर ये जो आपने उसके बाद ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था. तो जब भी हमें कोई स्पेसिफिक पोजीशन चाहिए होती है फ्रॉम अ वेक्टर तो वी यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. हाँ, यस व्हाट्सएप, एग्जैक्टली दिस इज द सिंटैक्स, मतलब दिस इज द वे इट इज. मैं अपनी मर्जी से यूज नहीं कर रहा हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट ही तरीका है. अगर मेरे को लोकेशन एक्सेस करना है किसी. Now what happens is one more thing which you should know of is, think about it, क्या आंसर आने वाला है इसका अगर रन ही कर रहा हूँ मैं. जस्ट लुक एट माय स्क्रीन, डोंट टाइप, डोंट रन. मैं या तो कोड भेज दूंगा सीधे सीधे आप लोगों को, और अदरवाइज यू कैन डू इट एट योर कन्वीनियंस. अभी टाइप में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. जस्ट हैव द लुक एट द स्क्रीन एंड व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू थिंक आंसर आना चाहिए इसका. Okay, some say 14, some say false, some say true, and finally Varun has killed it. Okay, guys, again I will remind you, Excel was built for data analysis with the sole purpose of data analysis only. So it's के सारे ऑपरेशन उसी तरह से काम करेंगे जैसे डेटा में करने चाहिए थे. थिंक अबाउट इट, अगर मेरे पास ये एक एक्सेल शीट ही होता
अगर ये मेरे किसी एक्सेल शीट का कॉलम होता तो मैं इवेंचुअली मैं चाहता क्या इसको कि ये क्या आंसर आ जाए। मेरी इच्छा क्या होती, यहाँ पर मेरा वो वेक्टर है, वही वेक्टर जो अभी हमने आर में देखा हुआ था, और क्या क्या वैल्यूज थी वहाँ पर, 5, आई थिंक 8, आई थिंक 14 एंड आई थिंक 10 ऐसी शायद थी ना कुछ। वाह, राइट। और अब मुझसे कोई क्या कह रहा है कि इस डेटा सेट में ये वेक्टर जो भी था, मे बी इट वॉज एज, मे बी इट वॉज सैलरी, मे बी इट वॉज CTC, ये जो कुछ भी था ये वैल्यू, आई वॉन्ट टू कंपेयर इट विद वन सिंगल एंटिटी। और मैं क्या चाह रहा हूँ, चाहूंगा क्या मैं इवेंचुअली जब मैं डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, एसेंशियली आई विल वांट कि जो भी मेरी कंडीशन है उसका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू फॉल्स जो भी है आ जाए, सबके सामने सबका आ जाए। आई डोंट वांट वन रिजल्ट। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं एक बार इसे कंपेयर करूंगा, फिर इसे कंपेयर करूंगा, फिर इसको और फिर इसको। ये सो नो टीडियस हो जाएगा ना मेरे लिए। व्हाई विल आई डू द हार्ड जॉब व्हेन आर इज देयर टू डू दैट फॉर मी। ठीक है पीपल, याद रहेगा, आर के सारे ऑपरेशन इंडेक्स वाइज होंगे। आई हैव कंपेयर्ड दिस वेक्टर विद अ वैल्यू 10, तो इट विल कंपेयर इंडेक्स नंबर 1, और रिजल्ट में, रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 1 पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। इट विल कंपेयर इंडेक्स नंबर 2 एंड रिजल्ट के इंडेक्स नंबर 2 पे उसका रिजल्ट आ जाएगा। इफ आई रन दिस, क्या आंसर आता है इसका, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, हर एक वैल्यू को पकड़ के उसने उसका रिजल्ट दे दिया है उसी सीक्वेंस में, इंडेक्स 1 2 3 4, और एक नया उसने आंसर दे दिया है इंडेक्स 1 2 3 4। तो थिंक अबाउट इट इवेंचुअली। इसका मतलब इसको मैं ये समझूं कि इस कंडीशन का आंसर भी एक वेक्टर ही है which has 4 logical values. This is also a set of values, yes or no? लॉजिकल टाइप का हो गया आंसर मेरा, कंडीशन थी क्योंकि ट्रू और फॉल्स में आंसर आना था। ओके वेरी फाइन। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज देर इज समथिंग कमिंग अप। यूजुअली थिंक अबाउट दिस इज अ वेक्टर लाइक कॉलम ऑफ अ डेटा सेट। थिंक अबाउट इट, डेटा सेट में कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, एक वेक्टर कितना लंबा हो सकता है, व्हाट कैन बी द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। यस, virtually infinity. Practically it may range from a few hundreds to a few million. करेक्ट। नाउ जब मैं डेटा सेट को डील कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास एक डेटा सेट है विच इज से, आई विल शो यू, मैं डेटा ही दिखा, सपोज दिस डेटा अबाउट कस्टमर्स ऑफ अ कंपनी, और कंपनी ने उनका कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ है, नेम किस एरिया से बिलोंग करता है, जेंडर, एज, कस्टमर आईडी जनरेट किया हुआ है। जस्ट थिंक अबाउट इट, मेरे को, मैं आपसे कहूँ कि इसमें से ये 76 वाली जो वैल्यू है ना, ये एक्सेस करनी है मेरे को, रो नंबर 17। ये कोई क्यों कहेगा आपसे, बीइंग एन एनालिस्ट, आपसे कभी कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इंडेक्स नंबर 20 वाला लेके आओ या इंडेक्स नंबर 50 वाला देखना है मेरे को। आपसे कोई क्या कहेगा कि मेरे को यार वो लोग बताओ जो 50 से ऊपर है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, प्रैक्टिकलिटी समझ रहे हो आप बात का। देयर विल बी, यूजुअली यू विल हैव अ सर्टेन कंडीशन कि मेरे को इस कंडीशन, ये कंडीशन जहाँ ट्रू है उस इंडेक्स पे वैल्यू दिखाओ। मेरे को इस बात से मतलब नहीं है कि वो एग्जैक्टली वो इंडेक्स है कौन सा। सो उसी के लिए यूजुअली वेरी ऑफनली यू विल बी यूजिंग दिस। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बता रहा हूँ, मैं इंडेक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ।
मेरी कंडीशन क्या है कि जहां मेरा वेक्टर 10 से इक्वल हो या 10 के ज़्यादा हो, उस लोकेशन पे इस वेक्टर की वैल्यूज निकाल लो। टेक सम टाइम, लेट इट डाइजेस्ट, लेट इट सेट। मैंने बताया कंडीशन, इस कंडीशन का आंसर क्या आता था अभी देखा हमने, वो तो ट्रू फॉल्स आता था, ये रहा। और अब मैं क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया मैंने ये ट्रू फॉल्स, तो जहां जहां ट्रू आ रहा होगा वो वैल्यूज मिल जाएंगे मेरे को इस वेक्टर के। तो दिस इज कंडीशन बेस्ड इंडेक्सिंग, एंड वेरी ऑफन देन नॉट यूजुअली आप यही यूज करेंगे। लेट्स रन। ओके, वेरी फाइन। अभी हमने देखा था ये दो जगह पहले जहां फॉल्स फॉल्स आया था वो वैल्यूज तो नहीं दी, जहां जहां ये ट्रू आया था वो वैल्यूज उसने मेरे को दे दी इस वेक्टर। यस अभिलाषा, अगर आप वेक्टर को इससे कंपेयर कर रहे हैं वो ट्रू एंड फॉल्स देगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वैल्यू सेटिस्फाइज द कंडीशन और नॉट। लोकेशन पैरेंथेसिस में, हाँ अभिलाषा वही बता रहा हूँ, लोकेशन पैरेंथेसिस में मैं नंबर दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरे पास तरीके हैं उसे देने के। लेकिन यूजुअली ऐसी कंडीशन आएगी नहीं कि मैं, मेरे को कोई बोलेगा कि 10th इंडेक्स चाहिए और 10,000th इंडेक्स चाहिए और मेरे को इंडेक्स चाहिए नंबर 1 1 2 7 5। ऐसा कोई बोलेगा नहीं ना मुझसे इंडेक्स करने के लिए अपना कॉलम। मुझसे कोई क्या बोलेगा कि इन एम्प्लॉयज की, वो उन एम्प्लॉयज की एज दिखाओ जिनकी एज 50 से ज्यादा है। अब मुझे नहीं पता कौन से नंबर पे आ रहे हैं वो एम्प्लॉयज, मुझे बस एक कंडीशन पता है, तो मैं क्या बोलूंगा, द एज कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट एट, यहाँ पर मैं, मेरे को नहीं पता वो कौन सा नंबर है, मेरे को कंडीशन पता है मेरी, दैट एज शुड बी ग्रेटर देन 50। हाँ ठीक है, एक ही एक ही एम्प्लॉय था ऐसा, तो अब मेरे को नंबर से मतलब नहीं है। ओके फाइन। अजीत उस पर आते हैं अभी we'll deal with it, we'll deal with it soon enough. What does this say? My import, import, okay, नहीं import की नौबत नहीं आएगी शेखर, देखेंगे अब। My vector, मैं कह रहा हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग, इट इज कॉल्ड नेगेटिव इंडेक्सिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग ऑफ वेक्टर। अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स देता हूँ, मैं 3 दे रहा था तो थर्ड इंडेक्स एक्सेस कर लिया, मैं बोल रहा हूँ -3, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एवरीथिंग बट नॉट 3, 3 को छोड़ के बाकी सब। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? थिंक अबाउट इट। वेक्टर बोरा ऊपर देखा है आपने, और मैं क्या कह रहा हूँ, थर्ड लोकेशन छोड़ के बाकी कुछ भी चलेगा। एनीबॉडी नॉट गेटिंग वॉइस? You are responding, I think you are getting voice. Some say 5 4 10, 5 4 10, मोहित 4 तो है ही नहीं वेक्टर में। यस, थर्ड वैल्यू विच वाज 14 वो ड्रॉप हो जाएगा और बाकी तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हुआ। वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग टू पे अटेंशन टू। ये मिस्टेक बहुत करते हैं आप लोग, आप लोग से मेरा मतलब नॉट आई एम पॉइंटिंग यू, आई एम टॉकिंग इन जनरल स्टूडेंट्स।
what I want to emphasize is this is just printing the values. मैंने बोला माई वेक्टर की थर्ड लोकेशन छोड़ के बाकी जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर दो, बस प्रिंट कर दो, और कुछ नहीं कहा है मैंने, तो ये प्रिंट ही हो रहा है। अगर मैं अपना वेक्टर देखने लगूं, माई वेक्टर, वो अभी भी वैसा ही है, उसमें वो चारों वैल्यूज अभी भी हैं, तो वहां से कुछ नहीं गया है। ठीक है, याद रहेगा, मेरे एनवायरनमेंट पे जो कुछ भी है वो तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं कुछ वैल्यू असाइन नहीं कर दूंगा उसके ऊपर। यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, असाइनमेंट कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर मेरे को अपना चेंज सेव करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या कह रहा हूँ इन दिस लाइन, मैं क्या कह रहा हूँ, माई वेक्टर में से थर्ड इंडेक्स को ड्रॉप कर दो, और अब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कुछ भी रिजल्ट है उसे असाइन कर रहा हूँ कहाँ, एक न्यू वेक्टर पे। अब ये चेंज सेव हो जाएंगे न्यू वेक्टर में। नाउ इट इज द न्यू वेक्टर। फेयर? ओके सर, व्हाट इफ हम न्यू वेक्टर नहीं बनाते, मैं ये सेव माई वेक्टर नाम पे ही चेंज कर दूं तो क्या होगा, थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट चेंजिंग द नेम, आई एम कीपिंग द नेम सेम। मैंने बोला माई वेक्टर का माइनस कर दो 3, थर्ड एलिमेंट ड्रॉप कर दो, और उन्हें स्टोर कर दो कहाँ, माई वेक्टर पे ही, माई वेक्टर नाम पे ही। तो क्या होने वाला है, यस एग्जैक्टली अभिलाषा, नाउ यू आर गेटिंग इट वेरी वेल नागेंद्र, अब आप समझने लगे हो चीजें। अब वेक्टर चेंज हो जाएगा, पहले चेंज नहीं हुआ था, बस प्रिंट हुआ था। नाउ दैट वैल्यू हैज परमानेंटली गॉन। So this is more or less about indexing. Vector operations, okay. I don't want you to run it. Think about it, what is going to happen. I have an odd vector, I have an even vector, and then I am adding these vectors. What is going to happen? एक vector odd numbers 1 3 5 7, एक vector even numbers, just for fun sake I have created like this 2 4 6 8, and now I am saying this vector plus this vector. I want you to, हाँ मैं आके कुछ आंसर देखना चाह रहा था, जस्ट टाइप इन क्या आंसर आने वाला है। ओके नागेंद्र, ओके अभिलाषा, बाकी लोग, अरे निपट गए, हो गया लंच वंच कर गए बढ़िया से, अच्छा ठीक है। वेरी फाइन, नाउ यू आर कैचिंग अप। एग्जैक्टली, रिमेंबर थोड़ी देर पहले बात हुआ था इंडेक्स वाइज होगा, index number 1 of this vector, index number 1 of this vector, and it will become index of the resultant vector number 1, odd even, and I have added them and it is giving वही जो आप लोग कह रहे थे, index 1 with index 1, 2 with 2, and so on. Which brings me to another question which Shekhar has already pinged, and Varun is equally curious. That's nice. Let's see, it is my vector 1 3 5 7, it is my vector 2 2 4 6, and now they are in different lengths. See for yourself what happens. You have this code, just run it by yourself and see what happens. क्या पता चल रहा है? If I add them, what happens? पहले तो एक वार्निंग मैसेज आया है, हाँ मैं बस देखना ही चाह रहा था, इट इज नॉट एरर। अरे
एरर नहीं हुआ है अभी। ये जो लाल कलम से लिखते देते हैं ना, ये आर भी देगा और पाइथन भी देगा। तो ये लाल कलम देखते ही ना, भाग मत जाना, लैपटॉप छोड़ के, एरर आ गया, एरर आ गया। वार्निंग है, पढ़ लेना। एरर भी आ गया तो भी पढ़ लेना क्या एरर आया है। This is they are not the tool. This R Studio is not trying to shoo you away. It is trying to help you out. Do you people know that R and Python both are called interactive languages for some reason? बात हुई है हमारी इस बारे में? Yes, they are interactive. They are very user friendly. Line by line, you can run and see what is happening where, and if there is error, there is warning. You can see for yourself very easily. वार्निंग दिया है, वार्निंग दे रहा है, वो क्या कह रहा है? लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ शॉर्टर ऑब्जेक्ट लेंथ। कहने का मतलब क्या हुआ? वही जो हम अभी सोच रहे थे कि दीज आर नॉट इन इक्वल लेंथ। तो इंडेक्स 1 को 1 मिला, 3 को 4 मिला, 5 को 6 मिला, इस 7 को कौन मिलेगा? उसके लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तो ये क्या करेगा? आंसर फिर भी आएगा। इट विल ऐड इट विद इंडेक्स नंबर 1। रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगी। इसके आगे भी कुछ होता तो उसे किससे ऐड कर देता? इंडेक्स 2 एंड सो ऑन। ठीक है, वार्निंग दिया है, उसने ये बताया है कि शायद कुछ गलत हो गया है, पे अटेंशन टू इट। हाउएवर रिजल्ट फिर भी कुछ ना कुछ उसने कर दिया। I have a question. ठीक है जी, यही कुछ आना था। यस नागेंद्र, यस प्लीज। Nagendra. Yes, sir. So suppose we have a vector in which there are multiple character options. Characters are also available. Numeric and character both are available. Now I want to add numeric हाँ person only. हाँ, it won't Then happen, what we need? Nagendra. Yep. Yeah. Nagendra, remember we talked about that if it is a mix and match, so R will follow a particular pattern. Not pattern, I would say. It will follow preference. It will give first preference to character, then numeric, and then logical. तो अगर मिक्स एंड मैच हुआ कैरेक्टर और न्यूमेरिक का, तो वो पूरा वेक्टर कैरेक्टर बन जाएगा। और कैरेक्टर तो हमने ऐड करने का कोशिश किया था एक बार पहले, रिमेंबर? व्हाट इज कैरेक्टर प्लस कैरेक्टर? स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग करके देखा था ना, माई प्लस एप्पल्स। यू डोंट रिमेंबर? हाँ, तो उसका आंसर क्या देता है यार? आर बोलता कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो मुझसे? स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा, करेक्ट? ओके, इन दिस केस एरर देगा, इसका मतलब कुछ गलत हो गया है। वो सोचेंगे, बहुत सारे एनोमलीज की हमने बात की थी, अभी देखेंगे जब रियल टाइम डेटा देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कैसे कैसे डील करते हैं। ओके, देन applying some functions on vector. If this is a vector greater than equal to 5, you know what happens? You have already seen this. क्या होने वाला है? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, यही तो होगा। वेरीफाई, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स। ओके, ऐसा ही कुछ आने वाला था। फंक्शंस इन द सेंस, say there is a main function, क्या करता होगा main function? गैस पैरेंथेसिस है तो पहले ही समझ जाओगे, एक तो ये फंक्शन है। पैरेंथेसिस देखते समझ आना चाहिए फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट देखते समझ आना चाहिए इंडेक्सिंग, लोकेशन। Yes, again, very intuitive function. Main function will return minimum value from a set of values. Same goes for max function. ऐसे min की जगह max होगा, लगा कर देख लो। Just copy it, paste it below, change this, min की जगह max, देख लो क्या होता है।
क्या बताता होगा ये? जो भी बताता हो देखिए। देन देयर इज अ सॉर्ट फंक्शन। देख लिया, मैक्स करके देख लिया, या तुम भी मेरे जैसे मूड में हो आजकल? छोड़ो, क्या रखा है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, कर रहे हो तो। देन देयर इज सॉर्ट फंक्शन। क्या करता होगा ये? नाम भी रखा है इसके। sorts the values in certain order. Yes, my vector one was like 9 1 7 5 3, some random values. So हमने बोला sort कर दो इस वेक्टर को, and it has sorted it in ascending order, increasing order. ना, एक क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। आ गया क्या? यस एग्जैक्टली। सॉर्ट फंक्शन मैंने लगाया, वेक्टर सॉर्ट हो गया, बट असेंडिंग ऑर्डर में, मेरे को तो डिसेंडिंग में चाहिए था। व्हाट डू आई डू देन? So these are the things, these are the pointers when you should not ask me the questions, and you will not ask questions to me henceforth. I'll tell you a better thing, a better place to ask your questions. You know where? You know where? Yes, exactly, Abhilasha. I wanted to see you. I wanted to see this. The help document. If I check the help of sort function, see, it should start coming to you naturally. मुझे ये पता है सॉर्ट फंक्शन है, सॉर्ट फंक्शन काम भी कर रहा है, बस ऑर्डर की बात रह गई। मेरे को डिसेंडिंग चाहिए था, उसने असेंडिंग दिया है, तो मैं देख लेता हूँ ना सॉर्ट फंक्शन चल के कि शायद उसमें कुछ उसने फैसिलिटी दी हो। क्या कुछ ऐसा तरीका है, सॉर्ट की कुछ ऐसी वैरायटी है जिससे मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा? लेट्स सी। So let's see the help document, and it has told us, ये इसने सबसे ऊपर सिंटैक्स दिया है, ये बता रहा है कि आप क्या क्या आर्गुमेंट दे सकते हो। आप एक आर्गुमेंट x दे सकते हो। अच्छा ठीक है, x मतलब क्या देना होगा मेरे को? क्या होना चाहिए वो x? इट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और लॉजिकल और न्यूमेरिक वेक्टर। लिख के दिया है उसने किस क्लास का वेक्टर होना चाहिए, ऐसा ऐसा वेक्टर होना चाहिए। फिर उसने क्या बताया, यू कैन गिव अ डिक्रीजिंग पैरामीटर। ना यहाँ पे उसने क्या दिखाया है कि डिक्रीजिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखा हुआ है। एसेंशियली वो क्या बता रहा है, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही रहता है। अगर ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है तो मैं चेंज करके क्या कर सकता हूँ इसको? हेयर इट हैज गिवन द एक्सप्लेनेशन कि डिक्रीजिंग पैरामीटर का मतलब क्या हुआ। डिक्रीजिंग, इट इज अ लॉजिकल आर्गुमेंट, एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई? शुड द सॉर्ट बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ठीक है, जरा करके देखोगे आप लोग जल्दी से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देखिए। मोर और लेस एवरीथिंग यू नो ना, कैसे करना है। जस्ट ट्राई इट आउट, डू इट बाय योरसेल्फ। आई एम पॉजिंग माई सेल्फ फॉर अ मिनट।
Drop me a done when you are done. अजीत, मोनिका, क्या हो गया? हो नहीं पा रहा? शेखर, प्रतीक, guys, please tell me if it is done. If it is not done, please tell me that so that I know के करना क्या है आगे. Please respond, communicate to me. I'm in blank. No, yes, this is not the way. Okay, it's time that we move to second phase of your introductory hour. I have sent you a code, guys. Check your mail. And it is not an attachment. It is just mail. You just have to copy paste that in a script file. Open a new fresh script file. Copy from your mail, paste it there, and save it in a new file, new script. Tell me when you are done. Madhur, you have not sent me any test mail so far. Is it so? You are joining today itself. Madhur, it's you that you have moved from some other batch. Which batch you are coming from? Okay. Narendra, you too? Is it so? You have moved from some other batch? Okay.
Okay, give me a moment. Check it now. Narendra and Madhur, you must have received it by now. Very fine. What about others? So just copy paste it in a new script file, and you must be seeing something like this. Save your previous file. पहले वाली फाइल सेव कर दीजिए. यहाँ पर आपको 2-3 टैब दिख रहे होंगे. यहाँ पर ना there can be multiple tabs open. Now it is advisable whenever you start a new code, close other codes if possible. It will only confuse you. It is for your own good. That's one. Second, clean this environment from here. This broom sign. Again, here is also a broom sign. You click on that, it asks you to remove all objects. Yes, I want to remove all objects. What happens is, clean history also. When you start a new code, a new project, we clean everything because previous variables will only confuse you. That's one. पता लगा इस कोड में आपको कोई वेरिएबल बनाना था ABCD, वो पहले से एक रखा हुआ था यहाँ पर ABCD. आपको दिखता रहेगा कि ABCD बना हुआ है. नहीं, वो तो किसी और कोड का बना हुआ है. You are creating here my vector पहले से पड़ा हुआ है यहाँ पर. It will only confuse you, only trouble you. Secondly, it occupies memory. इतनी जल्दी से तो नहीं, but when you will be dealing with huge data sets, you will see that it hits in time duration. Calculation time increases. Fair, environment clean, history clean. Shall we begin? Very fine. तो वेक्टर हमने, how do we create vector? वेक्टर पे कुछ operations हो सकते हैं. If vector is numeric, there can be mathematical operations also, sorting this and that. Now correction and updation of vector. See, if I am creating a vector and I need to update it, मेरा कुछ error हो गया इसमें. Error in the sense, say this is a column in a data set of a sports academy. एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, वो अपने स्पोर्ट्समैन का, अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनका डेटा रखते हैं. एंड दे हैव क्रिएटेड अ वेक्टर हाइट्स एंड दे हैव कैटेगराइज्ड हाइट एज शॉर्ट, मीडियम, टॉल. Depend, I don't know what is the cutoff, but depending on some criterion, they are calling their sports person as medium or short or tall. And say at a certain point of time, we realize that this medium has been entered incorrectly. Mistake हो गया, गलत हो गया डेटा एंट्री करने वाले से. So height is the vector. If I print height, we see medium, short, short, tall, medium, medium. And what we know now that this medium is here by mistake. Actually, it should have been short. So what I'm saying,
थिंक अबाउट इट, अभी करके देखा है हमने। मैंने क्या बोला, हाइट्स की स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, इंडेक्स द लोकेशन। हाँ, तो मुझे कौन सा लोकेशन ठीक करना था, इसका पहला लोकेशन। व्हाट आई एम सेइंग, हाइट का पहले लोकेशन पे असाइन कर दो क्या, शॉर्ट लिख दो, एंड व्हेन आई डू दिस एंड दैट्स इट। जहाँ मीडियम था वहां पर अभी शॉर्ट आ गया है। ओके, exactly this was we wanted to do. So now this is vector correction. Okay, this I don't know, this is out of place, ये बात हो जानी चाहिए थी अब तक। लेंथ इज अ फंक्शन जो क्या बताता होगा वैसे, इंट्यूटिवली क्या लगता है, क्या बता देता होगा ये? हाँ, वही जो नाम है इसका, दिस इज अ वेक्टर, इस वेक्टर की कुछ लेंथ होगी, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें, वही बता रहा है वो लेंथ। हाउ मच लॉन्ग इज दिस एलिमेंट, इट इज 6 एलिमेंट्स लॉन्ग, so it is a data about 6 sports person। ये क्यों देख रहे हैं, अच्छा नॉट आउट ऑफ प्लेस ओके, इट इज ऑन पर्पस, नाउ आई रिकॉल। अब मुझे क्या करना है, करेक्शन हमने देख लिया, से मेरे को अपडेट करना है। आई नीड टू अपडेट दिस वेक्टर, अपडेट इन द सेंस अभी तक ये 6 स्पोर्ट्स पर्सन थे, नाउ देयर इज अ न्यू स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज वॉक्ड इन एंड मे बी ही और शी इज इन टॉल कैटेगरी एज पर देयर क्राइटेरिया। अपडेट क्या करूं, अपडेट 6 एलिमेंट पहले से हैं, 7वां एलिमेंट चाहिए, वही कह रहा हूँ। वही तो कह रहे हैं कि इसके 7th इंडेक्स पे क्या वैल्यू ले आई है, टॉल। नाउ आई थिंक इट विल मेक सेंस। किसने पूछा था, आई डोंट रिकॉल, बट somebody was asking के he or she was doing heights like vector index 0 और उसने किया कुछ इस पे असाइन। किसका क्वेश्चन था? someone ओके, अभिलाषा आते। तो अभिलाषा, हाइट के आप 0th इंडेक्स पे कुछ रखना चाहते हो, और रखोगे तो तब जब ये इंडेक्स पॉसिबल होगा, ये इंडेक्स ही पॉसिबल नहीं। इंडेक्सिंग बिगिंस एट 1, 0 इंडेक्स कुछ होता नहीं है यार में। ओके, दैट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, अगर आज आपको ठीक से नहीं बता रहे हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं ठीक से बताऊंगा यार, टेंशन नहीं है। हाँ, मैं अच्छा आदमी हूँ, हमारे से तो अच्छा ही हूँ। दिस कैरेक्टर 0 थिंग, अच्छा ओके, ठीक है, लेट अस कम टू डेटा फ्रेम्स, तो बात करता हूँ इसकी, बताता हूँ। दिस इज समथिंग नोट वर्दी, बता दूंगा इसको। ओके, हमने अपडेट कर दिया और हाइट्स देखते हैं, एंड व्हाट डू वी सी, एक 7th एलिमेंट आ गया, 7वां स्पोर्ट्स पर्सन, एंड हिज और हर कैटेगरी ऑफ हाइट दैट इज टॉल। तो वेक्टर अपडेट भी हो गया। और कैसे अपडेशन की जरूरत पड़ सकती है, अभी तक देख रहे हो, या तो शॉर्ट हैं या टॉल हैं या मीडियम है, अभी तक हमारी कैटेगरी वही चल रही है, शॉर्ट टॉल मीडियम मीडियम टॉल से। नाउ कम्स a sport person and academy realizes that he or she is extraordinarily tall, and he or she is so tall that इस कैटेगरी के अलावा जो एग्जिस्टिंग कैटेगरीज है उनसे हम अलग भी एक कैटेगरी बना देनी चाहिए हम। So what are they calling this category? They are calling this category as extra tall।
अच्छी बात है, हम कह रहे हैं अब की बार इंडेक्स नंबर 8 से और क्या डाल दो कैटेगरी, एक्स्ट्रा टॉल। हर जगह डबल कोट्स लगाते चल रहे हैं, ये तो समझ आ रहा होगा। कैरेक्टर सेंटर करने हैं मेरे को। ओके, और हाइट्स हमने प्रिंट करके देखा, एंड व्हाट डू वी सी? Guys, are you at least running it with me? I'm not letting you type so that we can save some time, but at least I wish you should run it with me. Okay, very fine. Thanks. Good. Now this extra tall is, I did this again on purpose. We are coming on to something special about R. There is a summary function, and if I say summary of heights, summary function is a powerful function which gives me much information about any data. Say I am telling summary का अभी हम बहुत extensive use देखेंगे in our module. I am seeing summary of heights and it tells me, what does it tell me? In one go it is telling me length, जो length function से देख रहे थे, जो class function से देख रहे थे वो भी बता रहा है. Mode is equal to character, let's ignore that for now. But दो function length और class का काम इसने अपने आप कर दिया, summary function. Of course you can type Watsal. If you can cope up with the pace, very welcome. Height and square bracket में length of height plus 1 will work. Definitely it will work, Nagendra. And I would say, why don't you give it a try? You are already trying logics. That's a very pleasant sign. You know, programming is all about logics. Why I'm saying summary is a powerful function? Suppose I had a numeric vector. Numeric vector, it has some values, and if I see summary of this vector, you see how much information it's giving me. Mode, I am saying again, let's ignore it for now. Mode is more or less the class only. You see summary function कितनी बातें बता रहा है? Minimum, maximum, mean, median. What is this? Third quartile. What is this? First quantile. ये क्या होते हैं? First quantile, third quantile. अरे फर्स्ट क्वांटाइल थर्ड क्वांटाइल छोड़ो, ये पता है सबको मीन मीडियन क्या होता है? Mean is arithmetic average, correct, and median is middle value. ठीक है जी, बढ़िया, सॉर्टेड। खैर इन पे हम आएंगे, वी विल टॉक अबाउट दीज स्टैटिस्टिक्स इन डिटेल soon enough. Let's stick to summary function. तो summary मैं बता रहा था, summary is a powerful function. Yes, it is.
अभी हमने कैरेक्टर वेक्टर पे अप्लाई किया था, तो उसके बारे में कुछ बता रहा था, उसके बारे में उसने कुछ बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन दी। एक न्यूमेरिक वेक्टर पे अप्लाई किया, तो उसकी उसने मेरे को काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है। Coming on to something next is factor data type. What is factor? Factor is a special data type in R. Sir, sorry for interrupting. One question. Yes, what sir? सर जैसे आपने जो समरी फंक्शन यूज करा था, तो हमने जो पहले वाले वेक्टर में यूज करा था, तो उसमें एज इन हमारे पास ये सब नहीं आया, क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीन, मीडियन मोड, ये सब। तो मतलब जैसे अब जो हमारा वेक्टर पहले हाइट्स वाले में से, जो हाइट्स वाला फंक्शन था, उस पे जो हमने करा था समरी वेक्टर, हाइट्स वाले में हाइट्स वाले में व्हाट सर? एक बात बताओ, हाइट्स में कैरेक्टर वैल्यूज हैं, शॉर्ट मीडियम टॉल। शॉर्ट मीडियम टॉल की मीन क्या होगी? नहीं होगा, वो ही मैं पूछ रहा था, मतलब नहीं होगा। तो फिर समरी फंक्शन एज एन वेक्टर पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई कैरेक्टर वाला वेक्टर है तो उस पे नहीं आएगा, तो ऐसे क्या क्या आउटपुट आता है? जैसे अब हमने न्यूमेरिक वेक्टर रन करा, तो फिर ऐसे कोई डिफाइंड वो है कि जब भी हम समरी करेंगे एक न्यूमेरिक वेक्टर की, तो हमें वो क्या क्या आउटपुट देगा? हाँ, इट विल डिपेंड ऑन कि मैंने इसको डेटा क्या दिया है समरी फंक्शन को। इट डिपेंड्स ऑन द डेटा एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट डेटा। बेसिस दैट इट विल शो कि समरी क्या दी जा सकती है। Okay. There is no problem asking question, or I don't mind taking question, but give it a thought yourself. It is a character vector. What is the average of Vatsal and Alok? What is the mean value of Vatsal and Alok? No. कैसा बताएगा वो? I understood sir. मैं बस ये पूछ रहा था, जैसे हमने न्यूमेरिक वेक्टर रन करा, तो फिर समरी में जैसे इस टाइम में मिनिमम भी दे दिया, फर्स्ट क्वार्टाइल भी दे दिया, मीडियन मोड सब दे दिया, तो कुछ प्री डिफाइंड वो था कि जब भी एक न्यूमेरिक वेक्टर होगा और हम उसे रन करेंगे, इसकी समरी रन करेंगे, तो हमें ये सब आउटपुट मिलेगा। ओके, correct. Okay. If there is a numeric vector, this is the way you will receive out. This is also called 6-point summary. Sometimes इसको 6-point summary भी बोलते हैं। कभी क्वेश्चन आ जाए कभी कि 6-point summary, 5-point summary क्या क्या होते हैं। So this is the 6-point summary. Okay sir. ठीक है अभिलाषा, that pretty much sorts your comment also I think. आउटपुट क्या आने वाला है समरी का, इट विल डिपेंड ऑन क्या उसका आर्गुमेंट क्या था, उसका डेटा टाइप क्या था। ठीक है, okay, so this is factor data type. बिफोर गोइंग इनटू फैक्टर डेटा टाइप गाइस, थोड़ा सा अभी अभी फिर से थोड़ा सा कोडिंग को हॉल्ट करूंगा मैं यहाँ पर। बिफोर अंडरस्टैंडिंग फैक्टर डेटा टाइप, दिस इज अगेन समथिंग स्पेशल टू आर। You will not see factor data type very usually in any other language. तो थोड़े से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स फिर से आपके बात करेंगे इसके बारे में। तो shall we break for a few minutes first? Want to breathe a bit? Too much pumping? Too much coding pumping? ऐसा तो नहीं हो गया? चलो ठीक है, very fine. Okay, very fine. Let's do one thing. It is how much? It is 3:32 by my clock. Let's return at say, let's take a break of 10-12 minutes. And every one of us will resume at 3:44. I think that will suffice. 12 minutes. 10 plus 2. 10 minutes break. 2 minutes grace. हाँ, ग्रेस थोड़ी छोड़ेंगे हम, इंडियंस हैं। ओके इंडियंस, चलो ठीक है, सी यू।
So hi all, hope everybody is back. Please just ping so that I know. Okay, very fine guys. Nagesh, everything is atomic vector. If your vector contains only one element, it is atomic vector. If it contains multiple elements, it is list vector. Fine guys. I was talking about that you need to understand some theoretical concepts again. See, as I have already said multiple times, R deals with data only. It is designed that way. It is built for it. It is made for it. So now you need to understand what types of columns or variables which we are talking about, or vectors. What can be the kind of vectors? I'm not talking about data type. Data type will be essentially end of the day character, numeric, or logical. So there is the other thing which is entirely theoretical, but you should know it because these are terminologies and very frequently इनके बारे में कभी इंटरव्यू में बात हो जाता है and और इस डोमेन में बात होता ही रहता है. For example, if there is an organization and it is keeping data of its employees, ठीक है जी, क्या क्या हेडिंग होंगे इस डेटा के? Can you suggest a few? Okay, one is employee name. That's obvious. Very fine. Maybe let's keep it here. Designation. Okay. और serial number not exactly. Employee ID. हाँ, ये किसने बोला है? Employee ID. अभिषेक. No. मोहित. Okay. हाँ, ये बोला सता है वो एम्प्लॉय. वो गले में पट्टा डाल कर रखना पड़ता है ना. Remember? Those who are working, they know it. So it will have several data sets like employee ID, employee name, very fantastic. Designation, department. Okay, somebody said it. Very fine. Contact info, mobile number. Okay, बिल्कुल सही बात है. हाँ, most important thing, नागेंद्र. Exactly said. रोकड़ा, पैसा, मनी भाई. ठीक है, and so on. Maybe address, maybe office location, कौन से ऑफिस में located है. These two things may or may not be same ना. Yes, बिल्कुल ठीक बात है. Okay, let's talk about यहाँ पर वैल्यूज कैसी चल रही होंगी. तो पहली बात इसकी कर लेते हैं. ये एम्प्लॉय आईडी, ये क्यों जरूरत पड़ गई इसकी? वाई एम्प्लॉय आईडी? क्यों ये एम्प्लॉयज इतना दुखी करते हैं हमें एक नया नंबर दे करके, जब मेरा अपना एक नाम है. एम्प्लॉय नेम पता है ना. फिर yes, it is because of the distinction. Employee name may be the same, designation of two people may be the same, department of two people may be the same. What about mobile number?
ओके, मोबाइल नंबर, फिर भी एम्प्लॉय आईडी गिव्स अ सर्टेन, तो ऐसे कॉलम को हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, इट इज कॉल्ड यूनिक की और प्राइमरी की ऑफ दिस डेटा सेट, विच इज यूनिक फॉर ईच एम्प्लॉय, विच इज यूनिक इन ईच रो। हर रो में इसकी वैल्यू बदलती चली जाएगी। इट मे बी सिंपली सीरियल नंबर और इट मे बी रैंडम नंबर, बट फॉर ईच रो इट विल बी डिफरेंट। ठीक है, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स, ऐसा भी हो सकता है। What we are talking about essentially is types of variables in a data set. When I say variables, guys, data science terminology में variables refers to column name. अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ observations, यानी क्या कह रहा हूँ, rows. So ध्यान रखेंगे because आगे से हम इसी तरह से बात करेंगे. I will not use names columns and rows. We will be using names variables and observations. So we are talking about right now types of variables. So what can be the type of variables in your data set? One is primary key. जो अभी हमने देखा वो क्या होगा? It is a column which contains values which uniquely identify each observation of this data set. और कैसे हो सकते हैं variables? There can be numeric variables just like salary. Salary में कैसी values चलनी होंगी? 50K, 1 lakh, 70K, 75K, essentially numbers. Maybe something like also, I don't know if you have been lucky enough to have this kind of salary. I have been couple of times. So these are numeric columns. Numeric columns means they contain quantities, and such types of columns are called continuous variables. We call them continuous variables. Very fine. For example, एक आपने अभी देख लिया है salary. अच्छा, within continuous variables there can be two types. One is just like salary, जो आपने अभी देखा, इनको हम बोलते हैं रेशियो, और इनको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं कभी कभी. कॉन्टिन्यूअस इज जस्ट अ जनरल टर्म. मतलब क्या हुआ इस बात का, रेशियो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? इसका मतलब ये हुआ, ये हैं तो नंबर्स ही, बट इट में हैव डेसिमल फ्रैक्शन आल्सो, and when it may have decimal fraction, it can have any value between two consecutive integers. It can have infinite values between two consecutive integers. सही बात है, समझ आ गया है? समझ आती है बात, या बात करूं थोड़ी सी और? Okay, let me talk it about one more time. Let's talk about a different example. Say if I'm talking about heights of people. Heights of people, say in meters.
अब कितनी हाइट हो सकती है किसी की? Somebody may be 1.6 meter tall. Somebody may be 1.65 meter tall. Somebody may be 1.655 meter tall. Somebody may be 1.6558 meter tall. You are realizing? Just think about it. If somebody says that I am 1.6 meter tall, no, it does not mean he or she is just 1.6 meter tall. They may be this, they may be this, they may be any of this. इनमें से कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिजन ऑफ मेजरमेंट. जितना प्रेसाइज आपका मेजरमेंट होता जाएगा उतने ही डेसिमल वैल्यू कुछ भी आ सकते हैं. ठीक है, गेटिंग द जिस्ट. So such type of variables we are calling perfect continuous or ratio variables. तो दूसरे टाइप कौन से होते होंगे आगे समझ में? हाँ जी, fixed in the sense, Abhilasha? Yes, without decimal value, which cannot take an intermittent value. These type of variables are called, yes, Abhishek, discrete. It is just that spelling is wrong. It is all fine. मनप्रीत माइक ऑन कर लीजिए, क्या ऊपर से गया? लेट मी नो. जहां तक सर में जा रहा था वो बताओ, जब ऊपर से गया वो मैं बता दूंगा. जस्ट ऐसा समझो आप इसको. कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल मैं कह रहा हूँ दो तरह के हो सकते हैं. वन इज रेशो जिनमें डेसिमल पार्ट हो सकता है, लाइक हाइट्स, लाइक सैलरी. somebody's salary is 45,000. somebody's salary may be 45,000.25 पैसा. डेसिमल पार्ट आ रहा है, उनको हम बोल रहे हैं दे आर रेशो वेरिएबल्स और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. they can have any value, any possible value they can take. अभी डिस्क्रीट बता रहा हूँ तब समझ आ जाएगा. we are talking about discrete variables. discrete e.g. अपने एग्जांपल में देखें तो हम जो अभी एग्जांपल देख रहे थे इसमें कोई डिस्क्रीट वेरिएबल है क्या? नो. No, Abhilasha, no, Shikhar. Very carefully, I am not talking about mobile number so far. Okay, say number of reportees. वो ये डेटा भी देख रहे हैं कि इस एम्प्लॉय को कितने लोग रिपोर्ट करते हैं. हो सकता है, सही बात है. दिस इज अ मैनेजर, दिस इज अ सीनियर मैनेजर. इसको 5 लोग रिपोर्ट करते हैं, इसको 17 लोग रिपोर्ट करते हैं, 18 रिपोर्ट करते हैं, इसको 10 लोग रिपोर्ट कर रहे हैं. नाउ गेटिंग द जिस्ट. किसी को अगर रिपोर्ट करेंगे यार, इसको या तो 10 लोग रिपोर्ट करेंगे या 11 लोग रिपोर्ट करेंगे. देयर कैन नॉट बी 10.5 रिपोर्टीज टू एनिमल. करेक्ट. Another example, okay, Abhilasha says number of years since somebody joined company. Yes, if we are talking about number of days, if we are counting only days in full numbers, in whole numbers, then it will be either 20 or it will be 21. It cannot be 20.5. If we are keeping it that way, if we are keeping record of hours and minutes, then it will go haywire.
ठीक है, डिस्क्रीट यानी जहां पर डेसिमल पार्ट नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस यानी जहां पर डेसिमल पार्ट होता है। तो दीज आर कॉन्टिन्यूअस तो दोनों ही हैं, दीज आर रेशो, दे आर डिस्क्रीट। ओके, दिस इज अबाउट कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इनको हम कॉन्टिन्यूअस क्यों कह रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की दो पहचान होती है। हम किन वेरिएबल्स को कॉन्टिन्यूअस बोलें? You see, practically you will not go into these details, that whether it is a ratio or whether it is a discrete. It won't matter much when you will analyze. All that matters is whether it is continuous. If it is continuous, then मैं किसको बोल रहा हूँ continuous? Which are numbers? That's one. Condition number one. Pay attention to this. I'm saying that a variable is continuous if it satisfies two conditions. Condition number one, that is, they are essentially numbers, like salary, like number of reportees. When they are numbers, they are continuous variable. Second condition is yet to come. Second condition is that they are numbers, and second condition is numeric operations on these numbers should make sense also. I'll repeat. Condition number one, they are essentially numbers. Condition number two, numeric operations make sense also. What do I mean by numeric operations? अगर मेरे को कोई बोले कि इन एम्प्लॉयज का जरा एवरेज लेना, एवरेज सैलरी बताना, yes, taking an average of their salary makes sense. Taking average of their employee ID, does it make sense? It is also number. This, okay, नाम में लिख दिया मैंने. This, their employee ID is also number. But अगर मेरे से कोई बोल रहा है इनकी एम्प्लॉय आईडी का एवरेज ले लो, doesn't make sense. एक मेरा मोबाइल नंबर है, एक तो उनमें से किसी एक का मोबाइल नंबर है, कोई बोले कि इन दोनों मोबाइल एवरेज का एवरेज बताना, तो दोनों नंबर का, does it make sense? Doesn't make sense. कोई बोले ऑफिस लोकेशन या अच्छा इसको तो वो कर लेते हैं, ऑफिस अगर पिन लिखा हो इन्होंने, ये देखो ये सीपी का पिन कोड है, ये फरीदाबाद का पिन कोड है, इनका एवरेज निकाले हैं तो बदरपुर का पिन कोड मिलता है क्या? I hope you are getting the gist now. I hope it is pretty much clear now, है ना? Continuous अब समझ रहा है मनप्रीत? पक्का पक्का? ठीक है guys? So they are numbers and numeric operations make sense also. उनको हम बोल रहे हैं continuous variable. तो बचे कौन? ओके, साउंड्स गुड. तो बचे कौन? जो बाकी बचे उन्हें क्या कहूं? Others are called categorical variables. Categorical variables, essentially those on the basis of which I can categorize my population. I can categorize this data into small chunks. For example, इन लोगों का डिपार्टमेंट, एड्रेस हटाओ, एड्रेस से भी काम नहीं. हाँ जी, किस किस डिपार्टमेंट में काम कराया आप लोगों ने, जरा बताना जल्दी जल्दी. कोई सेल्स वाला है क्या? वो तो मैं हूँ. चलो, और कोई? कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस, हाँ सेल्स में ही है. फिर ये फैंसी नाम रखने से कुछ नहीं होता. मार्केटिंग
finance, very fine. IT recently came up, the most young department here, maybe ops, and many departments. होते हैं कि नहीं किसी भी कंपनी में? Accounts, manufacturing, design, very fine. If it is a R&D, sir. R&D, very fine. Now think about it. ये 8, 10, 12, 15 डिपार्टमेंट हो सकते हैं किसी कंपनी में. एम्प्लॉय कितने भी हो, एम्प्लॉय में रेंज फ्रॉम a few to a few thousand. तो थिंक अबाउट इट. डिपार्टमेंट घूम घाम के यही रहने वाले हैं इस कंपनी के. डिपार्टमेंट रोज रोज तो नया बनता नहीं है. हाँ HR निकम्मे, लो ये भी है. सर स्टोर. हाँ ठीक है. लेट्स नॉट गो टू एवरी नूक एंड कॉर्नर, बट हाँ ठीक है, मेजरली हमने सारे कवर कर ही लिए हैं. एडमिन चलो ठीक है. व्हाट आई वांट टू मेक इट अ पॉइंट है, ये डेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, घूम घाम के डिपार्टमेंट लोगों के यही रहने वाले हैं. आई होप समझ आ रहा होगा ये बात. सेल्स डिपार्टमेंट में 200 लोग हैं, उनकी टीम है, ठीक है, एम्प्लॉय चलता जाएगा. एम्प्लॉय 200 है, डिपार्टमेंट सबका सेल्स है. एम्प्लॉय 300 है, डिपार्टमेंट सबका IT है. करेक्ट. तो एम्प्लॉयज में भी a few thousand, डिपार्टमेंट घूम घाम के यही 10, 12, 15 रहने वाले हैं. तो आई कैन सबसेट माई डाटा ऑन बेसिस ऑफ दिस. आई कैन कैटेगराइज दिस डेटा according to department. I can see any day how many of this population lies in sales, how much in marketing, how many in analytics. That's why we are calling such variables as categorical. So stay with me. It is going to get worse. Not worse. डर मत जाना, ये ऐसे ही बोलता रहता हूँ मैं. Not worse. It is going to get better. अब ठीक है. Within categorical, there are types of variable. The number one is called nominal categorical. We call it nominal categorical variable. Example, department, जो हमने अभी देखा. इसमें भी इसको नॉमिनल क्यों कह रहे हैं वो अभी 1 मिनट में क्लियर होगा. जस्ट स्टे विद मी. ओके. एक वेरिएबल हमारे पास था डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन में क्या क्या वैल्यूज चल रही होंगी? एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, है ना, मैनेजर, ट्रेनी, मे बी AVP. वो भी तो होंगे, बहुत कम होंगे लेकिन होंगे. सुपरवाइजर्स, एंड मेनी मोर. तो कैटेगराइज तो मैं इनसे भी कर सकता हूँ, देख सकता हूँ ना किसी दिन. थिंक अबाउट इट. डेजिग्नेशन भी मेरी कंपनी में रोज थोड़ी बदलते हैं, रोज नया डेजिग्नेशन थोड़ी आता है. वो तो कभी कभी किसी AVP को प्रमोशन देना भी और नहीं भी देना हो, तब हम कहते हैं क्या कि एक को जूनियर VP बना देते हैं, एक को सीनियर AVP बना देते हैं. बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. अच्छी कंपनियां नहीं करती हैं ऐसा. अच्छी कंपनी डजंट डू दैट. It will be this kind of, right? Again, I can categorize how many executives, how many team leads, how many managers, how many trainees, how many AVPs, and so on. Correct? Again, categorical variable. Designation is also categorical variable. It is neither number. पहले तो नंबर ही नहीं है. न्यूमेरिक ऑपरेशंस की तो बात ही छोड़ दो. तो नंबर नहीं है तो ये कैटेगोरिकली हुआ. कैटेगोरिकल हुआ. अच्छा, प्राइमरी की भी नहीं है. ऐसा भी नहीं है कि ये यूनिक है हर रो में, ऐसा भी नहीं है. तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट तो हो रहा है इस कॉलम में, और जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसके बेसिस पे कैटेगरीज बनाए जा सकते हैं.
कैटेगरीज कैसे, लेट्स सेग्रीगेट एग्जीक्यूटिव्स, टीम लीड्स, मैनेजर्स, ट्रेनीज, काइंड ऑफ थिंग। तो इसके बेसिस पे भी कैटेगरीज बन सकती हैं, बट देयर इज समथिंग एडिशनल हियर। व्हाट इज दैट? इसमें कैटेगरीज तो हैं, लेकिन उन कैटेगरीज में एक ऑर्डर भी है। आई नो दैट ट्रेनी इज जूनियर टू एग्जीक्यूटिव, करेक्ट? Executive is junior to TL. TL is junior to manager. Manager is junior to AVP. Getting it right? Categories तो हैं, उन categories में एक order भी है. And when this kind of variable we see, we call it ordinal variable. Ordinal variable easy, जैसा अभी आपने देखा, क्या देखा? Designations. मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि नॉमिनल कह रहे हैं हम डिपार्टमेंट को. Now think about it. Can I say the same about department? Can I say in any sense that finance is better than marketing? Operations is in any way greater than analytics? Not exactly. That is why it was nominal. Okay, very fine. That's pretty much sorted. Then third one comes the tricky kind. Third one is, I'm calling it tricky kind. It is not only tricky kind, it is a liberator also many a times. So say let's not number of reportees. अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब की है, जिन्होंने कभी ना कभी, उन्हें पता होगा। ये PYR सुना है ना? PYR होता था ना, जिन्होंने जॉब किया उन्हें याद आ गया होगा। PYR या AR, जिसको एनुअल रेटिंग एक्चुअली, हाँ यस नगेंद्र, प्रीवियस ईयर रेटिंग या एनुअल रेटिंग। आपको रेट करता था ना आपका मैनेजर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, और ये रेटिंग हमेशा 3 ही आती थी, चाहे जान दे दो इस कंपनी के लिए। So let's see, check that, let's see if this company is also recording their previous year rating के last year इनकी रेटिंग क्या थी और वैल्यूज कैसी चल रही होंगी इसमें। अगेन 1 2 3 4 5, नॉट 6 तो होती नहीं थी। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 ये रेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को। 5 मीन्स द बेस्ट, 1 मीन्स नालायक। तो ठीक है, अगेन कमिंग बैक, इनके बेसिस पे मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ डेटा को। यस, कर तो सकता हूँ। आई हैव ओनली 5 कैटेगरीज। I can always see how many are my good employees who are 4 rated or 5 rated. I can always go to see who are the concerned 1 rated or 2 rated. सही बात है। Again I can categorize, but along with category what हमने अभी समझाते हैं। तो हाँ, एक ऑर्डर भी है। डेफिनेटली आई कैन से जो 1 रेटिंग वाले एम्प्लॉयज हैं वो 2 वाले से तो खराब ही हैं, 3 वाले 1 और 2 से तो बेटर हैं, 4 वाले इन सबसे अच्छे हैं, बट 5 वाले से खराब हैं, और 5 वाले आर द बेस्ट। So there is certain order also.
Getting it right? What is different than ordinal, जिसकी वजह से मैं इसे थर्ड कैटेगरी में ले जाने वाला हूँ? Can you find that out? Can you get it? Can someone nail it? Nobody? Don't even want to try? See, where it is different is there are categories. Yes, there are categories. There is order, जिससे मुझे पता लग रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस, हाँ yes नागेंद्र, of course परफॉर्मेंस तो पता चल ही रही है. But other than performance, now I have the degree of difference also. 2 is better than 1, but how much better? By 1 unit better. 2 is better than 1. 3 is also better than 1. But how much better? 2 is better than 1 by 1 degree. 3 is better than 1 by 2 units. Can I say that about this ordinal? TL is senior to executive. Definitely TL is senior to executive, but how much senior? Do I have a scale here? You're getting it? Now I have a constant interval. I have a certain interval established, tangible interval. Which is not present here. I know there is an order, but I don't know the interval of order. I hope clear हो गया. Guys, हाँ नहीं. Okay. Okay. Finally you are speaking. Okay. रजत, ऑर्डिनल में हम देख रहे थे कि इनमें लाइक हमने देखा था दिस डेजिग्नेशन, इट हैज अ सर्टेन ऑर्डर. We very conveniently know, we by common sense we know that एग्जीक्यूटिव से बड़ा ट्रेनी से बड़ा एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव से बड़ा टीएल होता है, टीएल से बड़ा मैनेजर. दैट इज परफेक्टली फाइन. देयर इज अ सर्टेन ऑर्डर. तो कौन सी बड़ी बात होगी, वो तो यहाँ भी है. बट यहाँ पर मेरे को क्या मिला है, यहाँ पर मेरे को एक इंटरवल भी है. अगर मैं कह रहा हूँ 3 is greater than 1, so 2 is also greater than 1. But how much greater than 1? So there is a constant interval. Yes, there is a constant interval of certain units on a scale. So there is a certain scale to this. वो scale यहाँ पर नहीं है. TL एग्जीक्यूटिव से बड़ा आदमी है, लेकिन कितना बड़ा आदमी है? How much? समझ गए अभी? हाँ, ऐसी बातें मत करो यार. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है, नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टाइन साहब को इसके पीछे. तुम मजाक में ले रहे हो. ठीक है जी. तो इनको क्या कहते हैं? इनका वही नाम है, इंटरवल वेरिएबल्स. सो दीज आर इंटरवल कैटेगोरिकल. तो
तो जो नॉमिनल है वो कैटेगोरिकल तो है लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डिनल में ऑर्डर भी है, नॉमिनल भी है और कैटेगोरिकल तो है ही। इंटरवल, इंटरवल भी है उसमें, उसमें ऑर्डर भी है और कैटेगराइज भी कर रहा है। फिर ठीक है जी, बढ़िया। इतना मसाला था अभी इसमें जानने के लिए। अभी एक ट्रिक बाकी है इसकी। व्हाई आई वाज सेइंग दैट, मैं बोल रहा था दैट दिस इज अ बिट ट्रिकी वन। At the same time it is confusing, at the same time it is liberating. Reason being, रीजन, अच्छा मैं ही बताऊं सब, तुम भी बताओगे कुछ नहीं? See if something comes to your mind. सब देख लिया तुमने? डेजिग्नेशन ऑर्डिनल है, डिपार्टमेंट नॉमिनल है, सैलरी कॉन्टिन्यूअस है, पीवाईआर इंटरवल है, नंबर ऑफ रिपोर्टीज होता क्यों रख लो ना। तो ये भी इवेंचुअली कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूअस। इट इज डिस्क्रीट, इट कैन हैव ओनली इंटीजर वैल्यूज। मोबाइल नंबर हमने देखा, नंबर तो है बट न्यूमेरिक ऑपरेशन डोंट मेक सेंस, सो वी कैन नॉट ट्रीट एज कॉन्टिन्यूअस। एम्प्लॉय आईडी अगेन नंबर्स तो है लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं बोल सकते इसको बिकॉज न्यूमेरिक ऑपरेशंस मेक नो सेंस। मनप्रीत, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? और उससे पहले मैगी मसाला, तुम अभी आए हो क्या? तुम मैगी खा के? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है, मैं बोल रहा था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बताने से पहले, मैंने शुरू करने से पहले बोला था कि इंटरवल वेरिएबल्स की जो थर्ड कैटेगरी बताने वाला हूँ, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की इंटरवल, इट इज अ बिट ट्रिकी वन। व्हाट इज ट्रिकी अबाउट इट? अभी अभी तो देखा हमने दैट पीवाईआर, अगर मैं बात करूं तो पीवाईआर इज काइंड ऑफ इंटरवल वेरिएबल। नाउ व्हाट्स ट्रिकी अबाउट इट? अरे सोच रहे हो, समझ नहीं आया? नहीं, फिक्स्ड इंटरवल तो है नागेंद्र, फिक्स्ड है तभी तो इंटरवल बोल रहे हैं उसको। इंटरवल हमने उसे बोला ही था जब देयर इज फिक्स इंटरवल टू इट। 1 और 2 के बीच की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और 3 के बीच की वैल्यू, तो डिफरेंसेस आर कांस्टेंट। ज्योति, कैन यू बी a bit precise? I have a hunch that you have pointed it out. यश, थिंक अबाउट इट, डेसिमल्स में होगा तो इंटरवल कांस्टेंट कैसे रहेगा? यस, अगर सारे, इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो 1 2 3 4 5 की जगह रेटिंग देती है अपने एम्प्लॉयज को 1.1 2.1 3.1, बट थिंक अबाउट इट, ऐसा कौन ऑर्गेनाइजेशन करेगी? और अगर कोई करेगी, यू विल आस्क देम अ क्वेश्चन ना, यू विल आस्क देम अ क्वेश्चन, आर यू स्मोकिंग व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प इज?
Thinking, brainstorming. Jyoti, I'm expecting your answer, Jyoti. मस्ती बहुत चल रही है लेकिन आंसर नहीं बता रहा कोई. हाँ ठीक है, शेखर माना रेटिंग नंबर आर रिपीटिंग एंड हैव अ रेंज 1 to 5. फिर क्या करूं? पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट. थोड़ी देर पहली बात हो रही थी. डिस्क्रीट की हमने अभी, कॉन्टिन्यूअस की हमने डेफिनेशन क्या रखी थी? दे आर एसेंशियली नंबर्स. नंबर तो ये हैं. एंड न्यूमेरिक ऑपरेशन शुड मेक सेंस ऑल्सो. मुझसे कोई बोले मेरे एवरेज एम्प्लॉयज की रेटिंग कितनी है, आई थिंक इट मेक सेंस. सेल्स डिपार्टमेंट बोले कि हमारे एवरेज, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एवरेज रेटिंग देखो तो जरा, तो खाली सेल्स का डेटा निकाल लो और उनकी इस रेटिंग का एवरेज लेके देखें. डज इट मेक सेंस? आई थिंक इट डज. Getting it? Getting everybody this hidden property? The trick is that very oftenly you will see that it is interval variable, but you can treat it as continuous as well. Now, when do you call it interval variable and when do you treat it as continuous variable? That's entirely what? Practice, experience. No bypassing that. ठीक है जी. अभी subsequently जब हम डेटा सेट्स देखेंगे, we will play around. I will and not tomorrow. थोड़ा सा अभी और डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे बाकी हैं, तो कल हम डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे. एंड इन कमिंग वीक वी आर गोइंग टू डू दिस. इन कमिंग वीक मैं बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए छोटे छोटे से कोर्स आपको देता रहूंगा, तो प्लीज बी एजाइल. डेली 15-20 मिनट्स थोड़ा सा समय देते रहिएगा कमिंग वीक. दिस वीक आई कुड नॉट डू, बट इन कमिंग वीक आई एम सर्टेनली गोइंग टू डू दैट. I wish to cover these things soon enough so that next week when you are in class, we will deal with actual data set and we will deal with actual problem and we will try our hands on basic analysis. So very fine guys, so let's wind it up for today. See you tomorrow, same time. Till then, bye bye. Take care. Thank you, Stay sir. safe. Take care. Okay guys, bye bye. Signing off. Bye.